This is my demo video for Foundation Maths on the 10th class topic quadratic equation. What is quadratic equation? It is basically belongs to the algebra. And what is an algebra? Algebra is the combination of constant and variable. It is belongs to the algebra. And what is an algebra? Algebra is the combination of constant and variable. What is a quadratic equation? A polynomial equation of degree 2 is called quadratic equation. And if degree 1 is called linear equation, if degree 3 is called cubic equation, if degree 4 is called biquadratic equation. What is general form? General form is ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is not equal to 0, because if a is 0, then this is remaining equation is called linear equation. Here a, b, c are real numbers. And types of quadratic equation: first is called pure quadratic equation, second one is mixed or complete quadratic equation. If b equal to 0 is called pure quadratic equation, in the sense ax square plus c is equal to 0 is the pure quadratic equation. What is mixed or complete quadratic equation? ax square plus bx plus c is equal to 0 is called mixed or pure or complete quadratic equation. Now we move on our next topic. What is roots? Roots of an equation, of an quadratic equation. Roots is an quadratic equation. It means ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 0. तो वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? रूट होगा. इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हियर इज 2 रूट्स आर पॉसिबल. इट मीन्स एक्चुअली 2 वैल्यूज ऐसी होगी जहाँ पे उस एक्सप्रेशन की ओवरऑल वैल्यू जो है वो मुझे कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी. आइए डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको. इफ x इक्वल टू अल्फा इज रूट्स ऑफ एन equation, if x equal to alpha is roots of an equation, is it satisfied the ax square plus bx plus c equal to 0? It satisfy the ax square plus bx plus c equal to 0. It means in the other word, a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. इसका मीनिंग है कि मैंने यहाँ पे x की प्लेस पे किसको पुट किया? अल्फा को. जैसे ही मैंने अल्फा को पुट किया तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 0 मिल गई है. ठीक है, तो यही इसका क्या है? रूट है.
Now we move on our next topic, method of solving quadratic equation. There are basically two solving method of a quadratic equation. First one will be solution by factorization method. In this method, if given a quadratic equation ax square plus bx plus c इज इक्वल टू 0, फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो नंबर्स ऐसे सर्च करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो किसके इक्वल आना चाहिए, a इंटू सी के. सपोज लेट टू नंबर्स और इसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ दैट और फैक्टर ऑफ कांस्टेंट. सपोज टू नंबर्स आर अल्फा एंड बीटा. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया मेरे पास a इंटू सी. ये तो है इसकी फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या है, उन सेम नंबर को सम या फिर डिफरेंस करने पर, उन दोनों नंबर्स का सम या फिर डिफरेंस करने पर वो एक्चुअल में किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए. अल्फ़ा उनको प्लस या फिर माइनस करने पे किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को. स्प्लिट मिडिल टर्म. ओके, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा. इफ़ एन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट here is a is equal to 1 and c is equal to 6. Two numbers are searching from there. Alpha into beta is equal to a into c. A into c is 6. Then same numbers add और subtract करने पर कितना मिलना चाहिए मुझे, b. Here b is 5. So what is the factor of 6? 1 and 6, 2 and 3 also. बट 6 and 1 माइनस करने पे भी, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है मेरे पास, 5 पॉसिबल है. और इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 5 भी पॉसिबल है. बट मैं यहाँ पे 6 को 1 से सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा. इसलिए मैं ये जो फैक्टर है इनको तो रिजेक्ट कर दूँगा और किन फैक्टर्स को लूँगा, 2 and 3 को. गॉट इट माई पॉइंट. यहाँ पे मैंने 6 और 1 को इसलिए नहीं लिया बिकॉज यहाँ पे अगर मैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी किस में आएगा, माइनस में आएगा. बट यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में एक्चुअल में प्लस में है, इसलिए मैं दोनों नंबर को क्या करूँगा, प्लस करूँगा. आफ्टर दैट मैं इस बीच वाली टर्म जो है इसको क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फिर यहाँ पेयरिंग कर लूँगा मैं, यहाँ से कॉमन आया x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दो टर्म बन गई मेरे पास, इसमें भी x प्लस 2 और यहाँ भी क्या है, x प्लस 2. तो फर्दर x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब देखिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0. तो दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 हुआ तो उसके लिए कंडीशन है कि उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर कैसा होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए. If possible is, if x plus 2 is equal to 0, then x will be equal to minus 2. Second possibility, if x plus 3 is equal to 0, then x is equal to minus 3. So here is two roots are possible because it is a quadratic equation. Now we going on second method. Our second method is solution by completing the square method. Completing the square method. इसका मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ आपको. फाइनली मैं जाके मुझे एक फार्मूला फाइंड आउट होगा, उस फार्मूले को हम श्रीधराचार्य फार्मूला ही बोलते हैं. बाय दिस फार्मूले की हेल्प से भी हम जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं.
तो आइए हम डेरिवेशन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर, पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्टली मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाऊंगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि पूरी इक्वेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूँ, ए से डिवाइड कर दूँ। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज 0। देन सी अपॉन ए को मैं राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। यहाँ पे मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, फार्मूला मेरे पास बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो हो गया मेरे पास ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, तो और साथ में फार्मूले में क्या था 2ab, तो यहाँ पे 2ab भी नहीं है, तो 2ab लाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा। फिर b अपॉन ए एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे हो गया 2, ये a है और ये बचा हुआ क्या होगा, b होगा। तो इसी का क्या करूँगा मैं स्क्वायर, b अपॉन 2a का स्क्वायर। ये मैंने मेरी तरफ से किया हुआ है, तो सेटिस्फाई करने के लिए फिर मेरे को इसको माइनस भी करना रहेगा, इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। फर्दर मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो फाइनली होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। यहाँ से मैं देखिए एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं इस 4a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 2a। फाइनली मैं क्या करूँगा, इस b अपॉन 2a को भी राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दूंगा। x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेशन बाय 2a। तो फाइनली क्या होगा 2a मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ गया x इज इक्वल टू। तो फाइनली मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करके भी x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। एक बार तो मैं प्लस ले लूँगा, एक बार माइनस ले लूँगा। दिस इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल है। कभी कभी क्या है हमसे फैक्टर नहीं हो पाता है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एक्चुअल में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्यों बोलते हैं इसे डिस्क्रिमिनेंट, बिकॉज इसी पर डिपेंड रहता है कि रूट्स का जो नेचर होगा वो किस तरीके से होगा। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। चलो मैं डिस्क्रिमिनेंट को हम डी और डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा रूट नहीं आता इस पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करेगा कि नेचर का रूट्स का जो नेचर होगा वो किस तरीके का होगा। फर्स्ट है इफ d इज ग्रेटर दैन 0। d अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो रूट बनेगा वो कैसा बनेगा, मेरे पास रियल रूट्स आएंगे। तो नेचर कैसा होगा, रियल, और एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, तो दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, सेकेंड विल बी इफ d इक्वल टू 0। अगर देखिए d अगर 0 हो गया तो यहाँ पे एक ही रूट बनेगा, बट रूट कैसा होगा, हमेशा रियल होगा, और दोनों ही रूट कैसे होंगे, सेम रूट होंगे। थर्ड स्टेप इज इफ d इज लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 हो गया तो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, मतलब कि इमेजिनरी वैल्यू होती है, जो कि आप फर्दर 11th क्लास में पढ़ोगे। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे।
और दोनों ही रूट्स किस होंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में डिफरेंट होंगे। दिस इज माई short demo video on the topic of quadratic equation. Thank you so much.